Hello students, welcome to the maths class. In the previous class we were discussing about the rules of addition in case of algebraic expressions, and we discussed three rules in that class. Rule number 1 was for addition of like terms together, positive like terms together, and rule number 2 was addition of negative like terms together, and rule number 3 was addition of positive and negative like terms together. Now there was one rule left regarding addition of algebraic expressions, and that rule is addition of algebraic expressions with like and unlike terms. Okay, in the previous rules there was just the difference that in the first rule it was positive like terms, in the second rule it was negative like terms, in the third rule it was positive and negative like terms both together. Now in this case you will have like terms also and you will get unlike terms also. उसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा था, इसमें पॉजिटिव लाइक टर्म्स भी होंगे, नेगेटिव लाइक टर्म्स भी होंगे, पॉजिटिव अनलाइक टर्म्स भी होंगे, नेगेटिव अनलाइक टर्म्स भी होंगे. बेसिकली इसमें आपके लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स सारे होंगे. सो वी विल लर्न द रूल दैट हाउ वी विल परफॉर्म एडिशन इन दिस केस. सो लेट अस बिगिन. ओके, first method to add them together is horizontal method. In this method, each expression is written in a row, horizontal line, that is, then the terms are arranged in group of like terms and added. अब देखिए पहला मेथड जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड कहलाता है. इसमें क्या होगा, आपको जो भी एक्सप्रेशंस दिए होंगे उन एक्सप्रेशंस को आप पहले एक रो में एक हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेंगे. हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरह से लिख लेंगे. उसके बाद जो लाइक टर्म्स होंगे जो उनको एक साथ लिख के ऐड करेंगे, और जो दूसरे तरीके के लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ लिख के ऐड करेंगे. व्हाट आई मीन टू से इज, let us see an example here that then you will understand this more clearly. So see, this is an expression and this is an expression. These two expressions are given to you and you are asked to add them together. Find the sum. This is a question from your exercise. So if you can see 7x और 2x लाइक टर्म आप बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर्स. तो 7x में भी x है और 2x में भी x है. बट क्या 7x और 4y को लाइक टर्म्स बोल सकते हैं? नो. क्या 7x और 6y को लाइक टर्म्स बोल सकते हैं? नो. क्या 2x और 6y को लाइक टर्म्स बोल सकते हैं? नो. एंड 2x और 4y को भी लाइक टर्म्स नहीं बोल सकते. सो लेकिन 4y और 6y को लाइक टर्म आपस में बोल सकते हैं, बिकॉज दे बोथ हैव सेम वेरिएबल फैक्टर, दैट इज वाई. तो इसीलिए कहा गया जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और फिर ऐड करना हम शुरू करेंगे. तो सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई अरेंज्ड बोथ टर्म्स टुगेदर. तो 7x माइनस 4y प्लस 2x प्लस 6y, ये दोनों टर्म्स ऐसे लिख लिया. अब 7x और 2x लाइक टर्म्स हैं, सो उनको एक साथ लिख देंगे. प्लस 4y और 6y लाइक टर्म है, सो एक साथ लिख देंगे, सो 6y. और मैंने जैसे कि कहा अलजेब्रा के केस में साइंस का ध्यान रखना है, साइंस इग्नोर नहीं कर सकते. तो 4y के पास कौन सा साइन है? माइनस साइन, सो दैट मीन्स माइनस 4y. अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स एक साथ हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स एक साथ हो गए. नाउ परफॉर्म द कैलकुलेशन. 7x plus 2x will give you 9x plus 6y minus 4y will give you 2y. So that is 9x plus 2y is the answer to this question. So see how easy it is. You just have to arrange the terms together and you can get the answer very easily. If you see in these expressions आपको like terms भी मिल रहे थे, unlike terms भी. unlike terms कैसे बोलेंगे? अगर क्या इन दोनों को बोलेंगे तो ये दोनों like terms होंगे? नहीं, ये दोनों unlike terms होंगे. दोनों के वेरिएबल फैक्टर्स अलग अलग हैं. So in these expression you will get like terms also, you will get unlike terms also, you will get positive like terms also, you will get negative like terms also. So likewise आपको हर तरीके के terms इन सब expressions में मिलेंगे. Moving on to second method, that is column method. In this method, each expression is written in separate column such that their like terms are arranged one below the other. Then the terms are added column wise. अब देखिए इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि इसमें हॉरिजॉन्टली आप अरेंज करते हैं और तब ऐड करते हैं, इसमें आप वर्टिकली अरेंज करेंगे, कॉलम्स बनाएंगे. कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स कुछ इस तरह का सिस्टम होता है ना, ये कॉलम, ये दो कॉलम, इस तरह से कॉलम्स होते हैं. सो वैसे आप कॉलम वाइज लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे. जो एक जैसे टर्म्स हैं, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक कॉलम में, जो दूसरे फिर लाइक टर्म्स हैं उनको अलग कॉलम में, और फिर आप एडिशन प्रोसेस करेंगे. सो सी हियर, लेट अस टेक द सेम एग्जांपल. सो यही क्वेश्चन हम लेंगे और उसको कॉलम वाइज अरेंज करके ऐड करेंगे. सो सी हियर 7x माइनस 4y और 2x प्लस 6y. 7x और 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो 7x के नीचे 2x अरेंज कर दिया.
-4y और 6y लाइक टर्म है, सो -4y और 6y को उसके नीचे, मतलब जो लाइक टर्म्स होंगे वो एक दूसरे के नीचे अरेंज होंगे कॉलम वाइज। फाइन। अब 7x + 2x गिव यू 9x। और यहाँ पे साइंस का ध्यान देंगे, जैसे अलजेब्रा में मैंने हमेशा बोला यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइंस। सो 4y के पास क्या है साइन, माइनस का, और 6y के पास कौन सा साइन है, प्लस का। सो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ऑल्दो हम कर रहे हैं एडिशन का प्रोसेस, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो दैट मीन्स हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, 6y में से 4y माइनस करेंगे तो 2y बचेगा। अब साइन देखिए, 6y बड़ा था ना, और 6y के पास कौन सा साइन है, प्लस। सो दैट मीन्स हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे यहाँ पे। सो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, 9x + 2y। सो दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस एग्जाम्पल। आई होप दीज टू मेथड्स आर क्लियर टू यू ऑल। Now let us discuss some more questions. This is question number 4, part 5 from your exercise. You have been given these two expressions, these two algebraic expressions are provided to you, and you are asked to find out the sum. You are asked to add them together and find out the value. So see, आपसे गलती ना हो इसलिए आप सबसे पहले क्या किया करिए, इस एक्सप्रेशंस में से जो भी आपको गिवन है, जो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लिया करिए। ओके, सो सी 4a³ b, इसका लाइक टर्म क्या होगा, -6a³ b। सो 4a³ b - 6a³ b आर लाइक टर्म्स। व्हाई, बिकॉज दे हैव सेम वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों में a³ b है ना, यस। ओके, नाउ -7a² b²। ओके हाँ, आप लोग हमेशा साइन का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने हमेशा अलजेब्रा में कहा है, विदाउट साइन कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे। सो -7a² b², इसका लाइक टर्म क्या होगा, 6a² b²। 8ab, इसका लाइक टर्म क्या होगा, -ab। Okay, as there is no such condition given in your exercise that whether you have to solve by horizontal method or by column method, so it's up to you, whichever you find easy you can solve it by that method. I am using here column method. I'm going to solve this question using column method. If you find horizontal method easy, if you find horizontal method more convenient, you can solve it by that method also. So let us begin adding them together. So मैंने क्या बताया था, you have to arrange लाइक टर्म्स कॉलम वाइज, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको कॉलम वाइज आप अरेंज करेंगे। सो पहले दो लाइक टर्म्स को देखिए मैंने यहाँ अरेंज किया कॉलम वाइज, मतलब वर्टिकली। सो 4a³ एंड -6a³ along with their signs, you have to write the terms along with their signs. So -6a³। then next like term was -7a² b², और इसका लाइक टर्म कौन सा था, +6a² b²। थर्ड वन was 8ab, और इसका लाइक टर्म कौन था, -ab। डन। नाउ स्टार्ट एडिंग। इन द फर्स्ट column you can see this is a positive term and this is a negative term. So positive negative क्या होता है, positive into negative negative होता है। So that means आपको subtract करना पड़ेगा। 6a³ b में से 4a³ subtract करेंगे, फिर a³ b तो 2a³ b बचेगा। और बताइए 6a³ b बड़ा है कि 4a³ b बड़ा है, 6a³ b बड़ा है और उसके पास नेगेटिव साइन है, इसलिए जो अल्टीमेटली हमको टर्म मिलेगा उसमें हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। जब ऑपोजिट साइंस होते हैं प्लस माइनस तो हमेशा हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, और जो टर्म बड़ा होता है उसके पास जो साइन होता है फाइनल वैल्यू में हम वही साइन लगाते हैं। ओके, सी हियर, प्लस माइनस ऑपोजिट साइंस है, सो दैट मीन्स हमें सब्सट्रैक्शन करना है। सो 7a² b² में से 6a² b² सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1a² b² आएगा। अब 1 हम नहीं लिखते, ये आपको पता है, इट्स अंडरस्टूड। Now see which term is greater, 7a² b² is greater and it has negative sign. So that means in the final value you will write negative sign. Now again here positive and negative signs are there, so that means you will perform subtraction again. You will subtract ab from 8ab. ab का मतलब 1ab. So 8ab में से 1ab minus करेंगे तो क्या बचेगा, 7ab. And which term is greater, 8ab or ab? 8ab is greater. 8ab has positive signs, that means you will write the positive sign in the final value. So this is the required expression after adding these two together. आपको ये फाइनल वैल्यू, फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। आपको जो ये दोनों टर्म्स को ऐड करके निकालने को एक्सप्रेशन बोला गया था, दिस इज द फाइनल कंक्लूडिंग expression which you will obtain after adding both of them together. Let us discuss one more question. This is question number 5, part 1. 2a plus b plus c. Second expression is a minus b minus c, and third expression is 3a plus b. So you are provided with three expressions.
आपको यहाँ पे देखिए 2 एक्सप्रेशन दिए थे, यहाँ पर आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हैं. सो मेथड इज सेम फॉर how many types of expressions are there, it doesn't depend on that. Method will be same for all of them. चाहे 3 एक्सप्रेशन हो, चाहे 2 एक्सप्रेशन हो, चाहे 4 एक्सप्रेशन हो, कितने भी हो. सो सबसे पहले हम लाइक टर्म्स लिख लेंगे. अगर आप इसको बिना लिखे भी डायरेक्टली कर लेते हैं सो दैट्स वेरी गुड. बट अगर आपको हल्की सी भी कंफ्यूजन होती है कि आपको लिखते समय गलती हो जाएगी, सो पहले आप लाइक टर्म्स लिख लिया करिए. सो 2a, a और 3a ये तीनों लाइक टर्म्स होंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर दैट इज a. सो ये तीनों लाइक टर्म्स होंगे. अब b माइनस b और प्लस b ये भी लाइक टर्म्स होंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सेम वेरिएबल फैक्टर दैट इज b ओनली. c प्लस c एंड माइनस c दे बोथ विल बी लाइक टर्म्स. और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में हमें c दिया ही नहीं है, सो लीव दैट. अब हम लाइक टर्म्स को कॉलम वाइज अरेंज करेंगे. 2a, a 3a प्लस b माइनस b प्लस b प्लस c माइनस c. अब हम एक एक कॉलम को ऐड अप करेंगे. सो 2a प्लस a प्लस 3a विल गिव यू 6a. फाइन. अब इसमें देखिए दो साइंस का बहुत डिफरेंस है, तो ऐसे केस में पहले आप पॉजिटिव साइंस को जो है सॉल्व कर लिया करिए. सो प्लस बी और प्लस बी मिला के कितना हो जाएगा 2b प्लस b. प्लस b का मतलब 1b है, सो 1b प्लस 1b विल गिव यू 2b. अब 2b और ये माइनस b, पहले जो पॉजिटिव साइंस वाले टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व किया करिए. सो हमने पहले प्लस b वाले को सॉल्व किया, तो प्लस b विल गिव यू प्लस 2b. फाइन. अब ये माइनस b बचा है, सो 2b में से अगर आप माइनस b करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1b. और हम 1 लिखते नहीं है, दैट मीन्स b ओनली. फाइन. सो प्लस b और बड़ी वैल्यू आपकी 2b है. 2b के पास पॉजिटिव साइन है इसलिए हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है टर्म. नाउ मूविंग ऑन टू दिस प्लस c माइनस c. प्लस c का मतलब 1c और माइनस c का मतलब 1c अगेन. सो प्लस 1c में से माइनस 1c करेंगे, 1c में से 1c माइनस कर देंगे तो 0 ही तो बचेगा. सो दैट मीन्स 0 है. सो फाइनल आंसर इज 6a प्लस b. I hope all that is taught to you today is clear. If in case you face any doubts, if you have any doubts, if you face any problem, you can ask me. I will solve your problem. So that's all for today. Thank you.